Hello students, I am your Hussain sir. Now we are going to start a new chapter called carbon and its compounds. We know that carbon is a very important non-metal present in your periodic table whose atomic number is 6 and atomic mass is 12. So you will be better familiar with that atomic number and atomic mass. Atomic number means the number of proton present in nucleus is called atomic number, and atomic mass means the number of proton plus number of neutron present in nucleus makes the atomic mass of an element. So in your periodic table today, in your modern periodic table, there are 118 elements known, in which most of the elements are naturally occurring and some are man-made. So in your periodic table there are 118 elements which is divided in groups, blocks and periods. Your periodic table consists of 18 groups, 7 periods and 4 blocks, which is called S, P, D and F. So we can say that group is a vertical columns and periods are horizontal rows. So you must have familiar with there are 118 elements present in your periodic table and 18 groups, 7 periods and 4 blocks. The name of blocks are S, P, D and F. So 118 elements, in 118 elements carbon is very special. That is why in class 10 you are going to understand carbon and its compound, totally based on carbon. This chapter is totally based on carbon. Besides carbon, some elements are also come into the existence, but mainly this chapter is dependent over carbon. So now we are going to start about something about carbon. We know that in nature carbon is present in earth crust and atmosphere. Earth crust only 0.02% in the form of carbonates, coal and petroleums. In the form of minerals, and minerals are carbonates and coal and petroleum, only 0.02%, and in atmosphere in the form of carbon dioxide. So the abundance in atmosphere in the form of carbon dioxide. So let us understand the nature of carbon. So carbon is a very unique element from your 118 elements. What is the property, what is the characteristics which makes it very important element in your periodic table? We know that in 118 elements most of the elements are metals, some are non-metal, but we cannot segregate non-metals from your daily life because the non-metal plays very important role in your daily life. So without non-metal you can't imagine your life. Why sir? Oxygen is non-metal. Without oxygen we cannot live. Water made up of hydrogen and oxygen. So without water we cannot live. So in number, in the periodic table, in number non-metals are come, but it is very important, it plays a very important role. अगर हम लोग ऐसे समझें कि नंबर में तो भले ही मेटल ज्यादा हैं, नंबर में आपके पीरियोडिक टेबल में भले ही मेटल ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप बात करें जैसे आयरन, आपके मेटल्स कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बहुत सारे मेटल्स हैं। लॉरेंसियम, जितने भी आप ले लीजिए, पूरा एस ब्लॉक क्या होता है बेटा? मेटल होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वैसे एस ब्लॉक में आप ऊपर रख देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट होता नहीं। ठीक है, आप चले जाइए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक आप कोई सब ले लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ड्यूटेरियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, कोई सा भी आप ले लीजिए, डी ब्लॉक के सारे क्या है बेटा? मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक में आप आ जाइए, कुछ भी ले लीजिए आप, लॉरेंसियम ले लीजिए, यूरेनियम ले लीजिए, हाँ कुछ भी ले लीजिए आप, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? मेटल होते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो एस, डी एंड एफ पूरा का पूरा मेटल होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इन पी ब्लॉक देयर आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, तीनों प्रेजेंट होते हैं बेटा। कहां पे होते हैं? आप पी ब्लॉक में जब जाएंगे पीरियोडिक टेबल में राइट में, तो आप देखेंगे बोरॉन, सिलिकॉन, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ये आपके मेटलॉइड होते हैं। उसके लेफ्ट में क्या होता है बेटा? मेटल्स होता है, उसके राइट में क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है। तो 118 एलिमेंट में कार्बन ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से इस पे एक चैप्टर पूरा बनाना पड़ गया। तो बेटा आप आगे चल के देखेंगे कि 3 तरह की आपको ब्रांचेस पढ़नी होगी, जिसमें पहला होगा फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 मोर ब्रांचेस लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कुछ कैलकुलेशंस वगैरह देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अगर कार्बन नहीं है, कोई और रिएक्शन कर रहा है, तो आप उसको इनऑर्गेनिक अभी फिलहाल के लिए समझ सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी रिएक्शन में अगर कार्बन आ गया, कार्बन अगर आ गया किसी रिएक्शन में, तो आप वहां समझ जाएंगे कि आपकी क्या होने वाली है? ऑर्गेनिक की ब्रांच
स्टार्ट होने वाली है। सो आप इसको क्या कह सकते हैं, इस वाले चैप्टर को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्यों कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और वो किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप नंबर 14 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पीरियड नंबर आप देखेंगे तो 2 होता है, ठीक है। अब इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, यूनिकनेस है। देखिए इसके पास क्या है बेटा, अगर हम किसी को कहें मेटल है तो पहले मेटल किसको कहते थे, मेलेबल होगा, डक्टाइल होगा, सनरस होगा, लस्चरस होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होती थी, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, जनरली हार्ड, जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट, डेंसर, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट मरकरी बोल देते थे। फिर उसके बाद नॉन मेटल के बाद नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ये सब सारी बातें करते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि मेटल क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ मेटल और नॉन मेटल ने सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। जितनी एक्सेप्शन थे, आपके मरकरी एक्सेप्शन था या आपके पास ग्रेफाइट एंड डायमंड एक्सेप्शन था, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बाद ये सारी एक्सेप्शन जो है क्या हो गई, खत्म हो गई बेटा। जैसे ही ये बात आई कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो मेटल होगा और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो नॉन मेटल होगा। सो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, मेलेबल, डक्टाइल और एक्सेप्शन वगैरह जो भी थी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो गई। सो कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे, कोई भी मेटल जो होता है वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मैक्सिमम, और कोई भी नॉन मेटल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर आयनिक बॉन्ड बनता है तो 3 इलेक्ट्रॉन से देना ज्यादा मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है और नॉन मेटल के लिए 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं होता है बेटा। अब कार्बन क्या है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। आप जब जाएंगे ग्रुप नंबर 14 में तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से एलिमेंट मिलेंगे जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे कार्बन का, जैसे कार्बन आपके पास क्या है, कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। जब इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,4 लिखेंगे, ठीक है। जब आप हायर स्टैंडर्ड में चले जाएंगे तो वहां पे एसपीडीएफ वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2 2s2 2p, 2 टाइप की होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है बेटा, 2,4। इसके लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कोई एटम है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसको बोलते हैं सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, और इसका एक फॉर्मूला होता है कितने इलेक्ट्रॉन किसी में प्रेजेंट होंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग 2n का स्क्वायर करते हैं। ये आप लोग वेल नोन होंगे इन क्लास 9, यू डेफिनेटली ऑलरेडी हैव रेड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो वी नो दैट फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन कंसिस्ट फर्स्ट सेल, यू हैव टू पुट n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 इज 2। इट मींस फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और थर्ड सेल में भी हम लोग कितना रखते हैं, अभी फिलहाल के लिए 9, 10th में आपको इस तरीके से चलना है 2, 8, 8 वाली कॉन्फ़िगरेशन। जब आप 11th में पहुंच जाएंगे, 9, 10th के बाद आप जब 11th में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको क्या करना रहेगा, एसपीडीएफ वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी रहेगी, ठीक है। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखेंगे, 2,4। आप जानते हैं कि लास्ट सेल वाला ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जब हम लोग डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4 है। अब अगर इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं, दोनों पॉसिबल नहीं है इसके लिए। तो ये क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। और आप जानते हैं कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही समझ लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। आइए देखिए, अगर एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, जैसे सोडियम हो और क्लोरीन हो, सोडियम हो और कौन हो बेटा, क्लोरीन हो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8,1 आएगी, ठीक है। और मैंने एक बेसिक लेक्चर में इसको समझाया भी है, आप जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुसैन सर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8,7 आएगी। अब आपको पता है कि मेटल अपने लास्ट सेल को क्या कर लेगा, 0 कर लेगा, और नॉन मेटल अपने लास्ट सेल को क्या करना चाहता है, 8 बनाना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें रखना चाहता है। इस चक्कर में सोडियम क्या करेगा, 2,8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन उठा के दे देगा, ठीक है। 2,8,0 हो जाएगा। इसके पास क्या होगा बेटा, 2,8,8 हो जाएगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे माइनस चार्ज आएगा। और आप जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों जुड़ जाते हैं, जिसको हम लोग जुड़ने के बाद ये बोल देते हैं कि इसने क्या बनाया है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाया। क्या बनाया है, आयनिक बॉन्ड बनाया, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नाम से भी आप 9th में जानते होंगे। सो आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म
between metal and a non-metal. ठीक है, and covalent bond is always formed between two non-metals. ठीक है, तो चलिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं, क्योंकि कार्बन जो है हम लोग का मेन टारगेट क्या है, हम लोग को पढ़ना है कार्बन के बारे में और इसके कंपाउंड्स के बारे में। तो हमें कार्बन का नेचर पता होना चाहिए। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमारे पास H2 है, Cl2 है, या आप ले लीजिए HCl है, O2 है, N2 है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब हम पूछे हाइड्रोजन कैसे बना होगा, तो आपको हाइड्रोजन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप कोवेलेंट बॉन्ड में सारे के सारे एटम को लिख लेते हैं। ठीक है, जितने भी एटम है कोवेलेंट बॉन्ड में आप सारे एटम को लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर उसका 1 है। ठीक है, अब 1 एटॉमिक नंबर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1,0 कर लीजिए। ठीक है, मतलब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये सारे के सारे एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर बहुत कम है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये लोग ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते। इनके पास फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, यानी डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन को आपको क्या कराना है, डुप्लेट कंप्लीट कराना है। तो ये कहता है कि तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं हीलियम की तरह बन जाऊंगा। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारे क्या होते हैं बेटा, नोबल गैस होते हैं। ये सब अपने अपने पीरियड्स के क्या होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते या देते इसीलिए हैं ताकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना इलेक्ट्रॉन ये रखे हैं उतने की बराबरी कर ले, और जब बराबरी कर लेते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। आप 2 में 8 जोड़ें 10 हो जाएगा, 8 जोड़ें 18 हो जाएगा, 18 जोड़ें 36 हो जाएगा, और 18 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 32 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 86। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं बेटा, ये सब मैजिकल नंबर कुछ होता है, 8 8 18 18 32 इस तरीके का कुछ, वो सब बात की बात है। ठीक है, अभी आप देखिए कि पहले वाले जो नोबल गैस है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अगर हाइड्रोजन भी अपने लास्ट सेल में यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो स्टेबल हो जाएगा। अब वो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, इसे कहेगा तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये कहेगा तुम्हें मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। दोनों में बात नहीं बनेगी बेटा, क्या होगा, बात नहीं बनेगी। दोनों चाहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। तो चलिए दोनों 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चाहते हैं कि मिल जाए, लेकिन मिलता किसी को नहीं है, तो दोनों में कॉम्प्रोमाइज होता है। चलो भाई क्या करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपना आगे कर दो और 1 इलेक्ट्रॉन मैं अपना आगे कर दे रहा हूं। जो शेयर हो जाता है बेटा वो दोनों का होता है। ठीक है, जो शेयर हो जाता है वो दोनों का होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा था, इसका चक्कर लगा रहा था, जब दोनों शेयर हो गए तो ये दोनों का चक्कर लगाने लगा, जिसकी वजह से बंध गए। और 1 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसी को आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाए तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो पहला ये समझ में आ गया, जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन कैसे बना होगा, क्लोरीन और क्लोरीन का 2 एटम आया होगा, कितना, 2 एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। आप इसको लिख सकते हैं 2,8,7, 2,8,7। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ये कहेगा तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, वो भी कहेगा तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, दोनों में बात तो बनेगी नहीं। तो फिर क्या होगा बेटा, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतनी ही शेयरिंग करा दो बेटा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करो, आप इसका 1 इलेक्ट्रॉन लीजिए, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन लीजिए, आप बीचों बीच में यहाँ पे रख दीजिए। इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये कहेगा ये पूरा मेरा है और ये कहेगा ये पूरा मेरा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया और 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी। जो शेयर्ड हो जाता है वो बेटा दोनों का होता है। ठीक है, अब इसने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसलिए सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आप कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। चलिए जल्दी देखिए, मान लीजिए O2 की बात करें। ठीक है, O2 कैसे बना होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना होगा। एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 2,6, ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो पहले तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना आप बना दीजिए। ठीक है, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2, तो ये कहेगा तुम मुझे दो, ये कहेगा तुम मुझे दो, कोई बात नहीं बनने वाली। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करानी पड़ेगी। तो ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे रख देंगे, बाकी जो बचा है उसको बचे रहने दीजिए। ठीक है, ये कहेगा ये मेरा है, ये कहेगा ये मेरा है। ठीक है, क्या कहेगा, मेरा है। अब देखिए इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसलिए डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो O2 इस तरीके से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना,
अब इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना वो इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये इसके चक्कर लगा रहे हैं, और ये चारों दोनों का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए बंध गया। यही कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड ही एक बॉन्ड होता है, बाकी आयनिक बॉन्ड कुछ नहीं, बॉन्ड नहीं होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो इसी तरीके से हम अगर बात करें N2 कैसे बना होगा लास्ट, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से बना होगा बेटा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,5 2,5। अब नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे बना लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं ना। अब आप देखिए कि इसको कितने की जरूरत है, 5 या 3 की जरूरत है, तो इसको भी 3 की जरूरत है। ये कहेगा तुम मुझे 3 दे दो, कहेगा तुम मुझे 3 दे दो, बात बनेगी नहीं। तो तीनों क्या करेंगे, शेयरिंग करा लेंगे, और कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। यही कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बन हमेशा क्या करता है, क्योंकि उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ना लिया जा सकता और ना ही दिया जा सकता है, इस वजह से वो क्या करता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा। जैसे आप कार्बन के कंपाउंड देखेंगे, मीथेन होगा, क्या होगा मीथेन होगा। कार्बन के और भी कंपाउंड आप देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन के मिलेंगे आपको, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, करोड़ों अरबों कंपाउंड मिलते हैं कार्बन के। कार्बन अपने आप में बेटा एक तरीके से पूरा समुद्र है। आप पूरे पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो 118 एलिमेंट आपस में जुड़ के जितने एलिमेंट बनाते होंगे, उतना तो कार्बन अकेले सबसे जुड़ के बनाता है। मतलब सारे एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, नोबल गैसेस को आप साइड रखिए, तो लगभग सारे एलिमेंट आपस में जो कंबाइन करके जितने करोड़ों अरबों कंपाउंड देंगे आपको, उतना तो कार्बन सबसे रिएक्ट करके अकेले देता है। यानी कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये सबसे रिएक्शन कर लेता है, लगभग पीरियोडिक टेबल में लगभग सबसे रिएक्शन कर लेता है, नोबल गैसेस को साइड रख दिया जाए। ठीक है, कार्बन मेटल से कर लेगा, कार्बन नॉन मेटल से कर लेगा, हाइड्रोजन से कर लेगा, किसी से भी ये बॉन्डिंग कर लेता है। ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड आप देखेंगे आगे चल के कि मिलते हैं इसके। अब ये मीथेन कैसे बना होगा बेटा, तो आप देखिए जितने भी मैंने क्या बताया कि आपके पास जितने भी एटम है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 1 1 1। ठीक है, कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखना है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी 4 इसके पास क्या होंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको कितनी की जरूरत है, 4 की जरूरत है। और इन सबको कितनी की जरूरत है, 1 की जरूरत है। यानी ये सब एक एक शेयर करेंगे और ये कितना शेयर करेगा, 4, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको इससे शेयर करा देते हैं। ठीक है, और एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2। अब इसका भी 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया। ठीक है, आप इसको इससे शेयर करा दिए, इसको इससे शेयर करा दिए और इसको इससे शेयर करा दिए। ठीक है, अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहली बात ये समझ में आई कि कार्बन क्या होता है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बनाता है। जब आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, ये अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें माइनस चार्ज भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी और आगे आप चलिए। जैसे CO2 कैसे बना होगा, CO2 कार्बन के पास हम लोग देख लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा, अभी हम लोग पीछे देख के आए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस होते हैं। ये कहेगा तुम मुझे 2 दे दो, मेरा 8 हो जाए, ये कहेगा तुम मुझे 2 दे दो, बात नहीं बनेगी। ये क्या कर लेंगे बेटा, शेयर कर लेंगे। और आपको मालूम है एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 2 4 2 6 2 8 इसका हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी ऑक्टेट, 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि कार्बन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की, और लगभग सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने हैं उसे वो बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसकी प्रॉपर्टी दूसरी क्या है, इसके पास सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब कार्बन क्या कर सकता है बेटा, कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है, ढेर सारा बॉन्ड बना सकता है, लंबी लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन से ब्रांचिंग कर सकता है बेटा। ठीक है, और ये ब्रांचिंग टूटेगी नहीं। कार्बन एक कार्बन की रिंग बना सकता है बेटा, बहुत सारी रिंग बना सकता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और कार्बन मेटल से जुड़ सकता है, नॉन मेटल से जुड़ सकता है। यानी इतनी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से इसके लाखों करोड़ों कंपाउंड आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, जो लंबी लंबी चेन बनाता है, और ब्रांचिंग की भी प्रॉपर्टी इसके पास होती है। सो हम लोग इसको और अच्छे से इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई अगर कार्बन की इतनी प्रॉपर्टी ज्यादा है तो इसके आगे का मतलब इसका कंपाउंड जो है उसका नाम वगैरह कैसे दिया जाए। मतलब बहुत सारे अगर कंपाउंड मिल जा रहे हैं, करोड़ों अरबों कंपाउंड मिल जा रहे हैं, तो हम करोड़ों कंपाउंड का नाम तो याद नहीं कर सकते, हम उसका नाम याद नहीं कर सकते। अब नाम याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा,
एक सिस्टम सीखना पड़ेगा जिसको हम लोग IUPAC सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मैं एक नंबर लिख दूं आपके सामने 2 3 4 5 2 6 7, ये 5 है, ठीक है। आपने अब से पहले ये नंबर कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप इसको पहचानते हैं। इसको कहेंगे आप 23,45,262। आपने आज तक ये नंबर शायद पहले कभी देखा ना हो, ना ही कभी आप काउंटिंग में पढ़े हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इस तरीके से आप करते करते 100 तक गए होंगे, आप 1000 तक पढ़े होंगे, आप 1 करोड़ तक तो नहीं पढ़े होंगे ना काउंटिंग। उसी तरीके से करोड़ों कंपाउंड का आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम सीख लेना है। और इसी जैसे आप नंबर को बता दे रहे हैं, पहचान ले रहे हैं, उसी तरीके से आप कार्बन के कंपाउंड्स को पहचान लेंगे। तो एंजॉय करिए तब तक, और अगला लेक्चर जल्द ही आएगा। थैंक यू।